So welcome everyone. Those who are listening us from the podcast or from the video in the YouTube channel Upskill with Abhishek. Welcome to all of you. Today we have an amazing guest with us, and he's a dear friend. The memory goes way back from the 80s and the 90s when we studied from the same school. हमारा दोस्त तुषार बोपचे आज हमारे साथ है. और अगर मैं तुषार के बारे में क्विकली बताऊं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कम फ्रॉम द सेम सॉइल इन छत्तीसगढ़ एंड born and brought up in Chhattisgarh, studied in Chhattisgarh in Vinden Memorial Higher Secondary School. Tushar has reached to new heights in the field of corporate world, and he's very down to earth, humble individual. You can see him. He's an entrepreneur currently, and he completed his education from. So welcome, Tushar. First of all, welcome to Upskill. थैंक यू अवेंस. थैंक यू अभिषेक. अभिषेक ने जो इंट्रोडक्शन दिया, जब वो बोल रहा था, पर मुझे खाली वो गली और वो स्कूल ही याद आ रहा था जहाँ पर हमने साथ में पढ़ा हुआ है. तो उसने जो बाकी चीज़ें बोली वो उतना मैं सुन नहीं पाया और मैं ध्यान नहीं दे पाया, क्योंकि जब आप अपने ग्रास रूट बचपन जहाँ पर आपने खेला हुआ है, जब आपको ये नहीं पता है कि आप क्या करने वाले हो, और वो क्रिकेट और वो हम स्कूल जाते थे तो वी वॉक थ्रू हिज लेन, एंड वो स्कूल के जो स्ट्रक्चर था और जो नियर अबाउट जो लेक था, जो छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट है, उसका वो ब्यूटी था. तो बहुत दिनों के बाद ने जब अभिषेक चालू किया कि हमने यहाँ से पढ़ा हुआ है, तो वो सब एक मेमोरीज याद आने चालू हुई, और पता ही नहीं चला कि कैसे 25-30 साल निकल गए वहाँ से निकले हुए, और हम प्रोफेशनल और पर्सनल एंड जस्ट टू प्रूव अवर सेल्फ कि जस्ट डू बेटर ईच एंड एवरी डे वी आर ट्राइंग एंड मूविंग अहेड. So good to connect. Good. Thanks for inviting for the cause which you have started Upskill, जो चैनल चालू किया हुआ है, जहाँ पर your motto is that to take things into different level, whatever you have achieved, and you want to give it to back to the society by the way of not only just giving the ज्ञान, but telling them कि boss, these are the things which is required in life. So thank you very much for inviting me. और बीइंग दो ज्यादा थैंक्स बोल नहीं सकता हूँ तो Absolutely. So तुषार का क्वालिफिकेशन, he's a mechanical engineer from Bhilai Institute of Technology, BIT. बड़ा फेमस हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज है छत्तीसगढ़ में, दुर्ग में. वहां से उसने इंजीनियरिंग की. बाद में ऑफ कोर्स every engineer want to be a management guy, so he went to Delhi to study his management, and then from there on he has also graduated and done certification program and his education in executive program from IIM Calcutta. So Tushar, I think coming back to the humble roots from where we all started, and as you said, amazing journey which you have walked through in the corporate world. What do you suggest, help or guide the youth or the students or the new startup students or entrepreneurs who are starting their journey from the small towns, from tier 2, tier 3 cities? What's your vision? Tell us about your journey. Tell us about your experiences, your strengths, and what is the learning you take, and what is the guidance you want to give it to them, Tushar? Because nobody can tell you better than the person who has himself done it. So you asked so many questions in one question. So it is very tough to answer what is the key behind the success and get things done. And मेरे जो strength है वही मेरी weakness भी है, because I don't think much by taking decision, and I believe to do justify today's. So I believe in today. मुझे आज को ठीक करना है, और तो सो दैट मेरा पास्ट अपने आप ठीक रहेगा और फ्यूचर की न्यू अच्छी बनते रहेगी. सो ऐसे कोई लॉन्ग टर्म गोल रख के कि ये अचीव करना है, वो मैंने सोच के कभी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं किया था, बिकॉज वी बिलोंग फ्रॉम स्मॉलर सिटी. और छत्तीसगढ़ जो था, वहाँ पर एजुकेशन एक मेन बुनियाद थी. हम्बलनेस इसलिए आया क्योंकि हम सब हम्बल है जो वहाँ से निकले हुए, बिकॉज वहाँ पर आपके पास में
एजुकेशन एंड एक जो पुश्तैनी बिजनेस चल रहा है वही चल रहा था। तो एवरीबडी हैज टू स्टडी हार्ड, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का बंदा हो, चाहे किसी भी फैमिली का बंदा हो। एंड फॉर द जो स्ट्रगल है 9 to 8 वाली, 9 to 5 वाली, वो सभी के लिए थी। दैट इज हाउ वी हैव सीन अवर पेरेंट्स एंड सोसाइटी है, क्लोजनेस है, साथ में रहना है और सबको साथ में लेके चलना है। तो दैट वी हैव गॉट फ्रॉम आवर सराउंडिंग एंड फ्रॉम आवर फैमिली। सो आई ऑलवेज थिंक, बिकॉज मेरे लिए मेरे सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें सबके लिए होनी चाहिए जो नहीं होती है, वो ये है कि हम अपने आप से क्लोज नहीं होते। once you are not close to yourself, then you realize after certain point of time depression होता है, we don't know what to take, how to take, and then we try to disconnect from society and many things. So what I have learned and keep learning is that कि I want to be more closer to myself rather than anyone else. Okay. And though I'm not a philosopher, not even the guru and gyani, but still I feel कि everybody have the core set of life, and mostly people only engage in the two set of life. One is the corporate life, professional, and one is your family life. But there is two more aspect which we don't do and we talk. Third one very much is our hobby and what we feel, which is our friend circle. And just to manage family and professional life, we try to avoid and disconnect from our personal life. जो हमारी हॉबी होती है, हमारे दोस्त होते हैं जो हमें अच्छा लगने लगता है। And fourth thing which nobody talks, and for that we always seek outside, that is our inner connect, जो हम भूलते नहीं है। And better than you, no one else, because you are fulfilling the fourth thing. Because I am just seeing you, and then I realize कि boss, you are the one person who is fulfilling all the four bucket list all together. Professional life, you are doing amazing, means much better than anyone else। जहाँ से निकले हैं, जहाँ पहुंचे अभिषेक पहुंचा हुआ है, अमेजिंग जर्नी। पर्सनल, यू आर मैनेजिंग, फैमिली लाइफ यू आर मैनेजिंग वेरी ब्यूटीफुली। पर्सनल थिंग तो हॉबी को अपने चीजों में कन्वर्ट किया हुआ है, द स्किल बाय अभिषेक, देन अदर यूट्यूब चैनल्स। एंड फोर्थ थिंग इज द इनर आर्ट ऑफ लिविंग, विच यू हैव गॉट ब्यूटीफुल थिंग्स इन योर लाइफ, which you are spreading across the many to many, connecting many lives. So there are very rare things where people do, and the same thing which I am also following. I want to justify all four of my aspect. And when I was in my college, so I set few deadline कि 25 में भैया जॉब लगनी चाहिए क्योंकि एमबीए करके निकल रहे हैं, 28 में शादी होनी चाहिए, 30 में बच्चे होने चाहिए, 40 में कुछ अपना स्टार्ट करना है। अब हुआ ये कि 25 में तो जॉब लग गई क्योंकि एमबीए करके निकले, लकीली 28 में शादी भी हो गई, बच्चे चलो 30 में नहीं हुए, आगे पीछे बच्चे भी हो गए। अब जब 40 आया ना, प्लान नहीं था, लोन, अपार लोन, पर अब बीइंग ए छत, मतलब जस्ट टेक द लाइटर नोट, बीइंग ए क्षत्रिय वो डिसाइड कर चुका है 40 में करना है। अब क्या करना है वो डिसाइडेड था कि बस जो भी करना है एग्रीकल्चर में करना है, जो भी करना है एजुकेशन में करना है, जो भी करना है फाइनेंस में करना है। सो बट लोगों के लिए, लोगों के साथ में करना है, दैट वाज द थॉट इन माइंड। कैसे करना है, कैसे स्टार्ट होगा, कहाँ से स्टार्ट करना है, वो नहीं पता। अब 40 आ चुका था और डिसाइड करना था, लोन अलग है। लकीली लोग भगवान की कृपा से एंड फैमिली के वेल विशेस से अच्छी पोजीशन भी थी कॉर्पोरेट में। सो इट वाज वेरी टफ टू डिसाइड, बट बिकॉज आपने डेडलाइन दिया हुआ, देन वी डिसाइडेड देन। और क्या होता है कि अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं आता कि ये हम कर सकते हैं, तो हम सहारा ढूंढते हैं कि यार चाहे उसके साथ चल लूँ, कोई बात नहीं, मेरे को 1% इक्विटी देते, आई विल स्टार्ट विथ हिम, मेरा बेसिक निकल जाए। तो 6 मंथ का वो R&D किया। बट जो मेरी स्ट्रेंथ, जो मुझे लगता है जो मेरी स्ट्रेंथ है, जो शायद वीकनेस भी हो सकती है, कि आई डोंट होल्ड डिसीजन लॉन्ग। फॉर मी होल्डिंग डिसीजन लॉन्ग इज नॉट इवन द मोर देन 1 month। आई टेक डिसीजन विद इन द वीक टाइम से। सो आई डिसाइडेड, एंड मैं घर में बताया तो घर में हार्डली टुक मी 1 hour टू कन्विंस माई फादर एंड मदर। उन्होंने आधे 5-10 मिनट उन्होंने हाँ बोल दिया। वाइफ पहले से था कि भैया यू आर कैपेबल टू डू इट। एंड जब आपने जर्नी चालू किया तो टुडे वेर एवर आई एम इन टर्म्स ऑफ, दो इट इज जस्ट स्टार्ट, बट मुझे लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। मीन्स इन टर्म्स ऑफ जो स्टार्टअप है, इज नॉट माई अलोन जर्नी, इज अ जर्नी ऑफ मेनी पीपल, दोस हु हैव लेफ्ट देयर जॉब एंड दे हैव जॉइंड दिस मिशन। एंड आज वो मिशन हम सबका हो चुका है।
जब हम बाहर निकले तो लोगों ने और सपोर्ट किया इन टर्म्स ऑफ कोलेबरेशन, इन टर्म्स ऑफ फाउंडिंग. टुडे वी आर अप्रॉक्सीमेटली 60 पीपल, 4 लोकेशन, and we are building proposition for making Bharat beautiful in terms of financial inclusion and giving them tools to take decision. So मैं just to cut short कि अगर आपका इनर सब चीजें बोलता है कि आपको कर लेना चाहिए, तो हाँ लाइफ में डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि बाद में जाके रिग्रेट नहीं होगा क्या ये मैं नहीं कर पाता. और वंस वी स्टार्ट डूइंग थिंग्स विल हैपन इन ए पॉजिटिव मैनर. नो नो अमेजिंग तुषार, दिस इज बहुत बहुत सटीक बात है. एक्चुअल में मैं कहीं पे बुक में पढ़ रहा था, देयर इज वन वुमन, एक लेडी है, उसने वो बुक लिखी है और उसमें इसमें बुक में लिखा हुआ था कि व्हाट आर माय रिग्रेट्स व्हेन आई एम डाइंग. यू नो, उस बुक को अगर आप देखोगे तो उसमें ये था कि जब आप एक्चुअली व्हेन यू डाई, व्हेन योर टाइम हैज टू लीव दिस वर्ल्ड, देयर आर लॉट ऑफ रिग्रेट्स वी लिव विद. बहुत सारी हमारे अंदर वो खिन्नता रह जाती है कि यार मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मुझे ये कर लेना था, वो कर लेना था. और उसमें उस समय उसको रियलाइज हुआ कि नहीं, जब मुझे एक्शंस लेने थे, जब मुझे क्या बोलते हैं, समय आया था कि मैं कुछ कर सकता हूँ, तो उस समय वो नहीं कर पाए. बिकॉज ऑफ इट इट क्रिएटेड प्रॉब्लम. सो गुड. सो तुषार, अभी एक अच्छी इंटरेस्टिंग बात बताई तुम्हें, वो कि किस तरीके से जो 4 एरियाज हैं, राइट, आपका प्रोफेशन है, फैमिली है, बट आपका इंटरनल एक एक हॉबी एलिमेंट है, जो पर्सनल एलिमेंट है, जो पैशन एलिमेंट है, और एक स्पिरिचुअल एलिमेंट है कि कैसे हाउ यू गो इनर सेल्फ, राइट. तो मैं पैशन वाले पोर्शन को पकड़ ले बात करना चाहता हूँ कि आपके अंदर जो हॉबी है, जो पैशन है, अभी आज के डेट में पैशन के लोग को लेके बहुत लोग आफ्टर कोविड, आपने देखा सिचुएशन की, कोविड में बहुत सारी चीजें डिसरप्ट हो गई, लोगों को इम्पैक्ट हुआ है जॉब्स में, यहाँ तक कि बहुत डिस्ट्रप्शन हुआ है फैमिली में. तो पैशन को जब हम बात करते हैं, और पैशन को कोई अगर यूथ कन्वर्ट करता है अपने अपने प्रोफेशन में, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ रेगुलेटरी बैकग्राउंड से, आप आते हैं सिक्योरिटीज के बैकग्राउंड में, आपको फाइनेंशियल मार्केट्स का बहुत स्ट्रांग होल्ड है, राइट. आप टेक में बहुत स्ट्रांग है, आप डील्स में बहुत स्ट्रांग है, तो आपका वो पैशन भी है. तो अगर सपोज कुछ बातें ध्यान रखनी हो किसी भी बंदे के लिए, किसी भी यूथ के लिए, कि भाई पैशन हमारा कैसे हमको अपने पैरों में खड़ा कर सकता है, उसके बारे में व्हाट्स योर थॉट, आपके क्या विचार है तुषार? एक्चुअली में क्या है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल हो गई है, सो पीपल आर कंफ्यूज करना क्या है. एंड सो टिल द टाइम पीपल आर कंफ्यूज, तो वो उनकी हॉबी है या उनका पैशन है कि उनको क्या करना है, दे डोंट हैव द क्लियरिटी. एंड वंस माइंड डजंट हैव क्लियरिटी, सो people keep committing mistake in terms of not trying, but it means delaying decision. means हाँ. ट्राई करना तो चाहिए, मतलब ट्राई इज नॉट योर रॉन्ग डिसीजन, डिलेइंग डिसीजन इज योर रॉन्ग डिसीजन. तो क्योंकि हम एक बेस्ट टाइम का और बेस्ट चीजों का मतलब आने की वेट करते आने के लिए. सो वॉट एवर लुक इज ऑल डिपेंड अपॉन, बिकॉज अल्टीमेटली आपको एक अच्छी लाइफ भी जीना है अपने. आप सोशल एनिमल हो, यू कैन नॉट डिचेट यूर सेल्फ फ्रॉम योर फैमिली ऑब्लिगेशन. तो बट हाँ, जो ये डिपेंड करता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है, क्योंकि हम बचपन से ये सिखाते हैं कि बॉस ये करो, 10th में अच्छा पढ़ लो, ये नंबर लेके आओगे तो आपका 12th लाइफ अच्छी हो जाएगी, 12th कर लो आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी. तो हम उनको धीरे धीरे हम उनका क्या बोलते हैं, स्पोर्ट्स से अलग करते हैं, कॉम्पिटिटिव से अलग करते हैं. जब वो जाते हैं तो हम उसको प्रोटेक्शन में डाल देते हैं कि भाई आप ये कोचिंग कर लो, ये सर अच्छे हैं यहाँ पर. सो जो एटमॉस्फियर करेंटली हमारे एजुकेशन सिस्टम का है, जो हमारे घर में है या स्कूल में है, वो उतना सही नहीं है. मतलब दैट नीड टू बी चेंज. ओके, दैट इज एंड दैट शुड अलाउ मोर पीपल टू टेक डिसीजन कि अगर गैप हो गया है 2 साल का, वापस वो आना चाहता है, तो उसका वेलकम, सोसाइटी उसको वेलकम करे. तो आज जो एनिमी है वो अपना सराउंडिंग है, बिकॉज वी कैन नॉट लिव विदाउट देम, एंड दैट इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग. आज आप और इंडिया में भी अगर आप चले जाओ, आप यू आर राइट नाउ इन बैंगलोर. बैंगलोर का जो माइंड सेट है और बॉम्बे का टोटली डिफरेंट है. बॉम्बे में पैसा है, पर बैंगलोर में माइंड सेट है. दे इंकरेज पीपल टू टेक डिसीजन. दैट्स द रीजन यू कैन सी द न्यू एंड न्यू स्टार्टअप. आज बॉम्बे फाइनेंशियल हब था, हमारा फाइनेंशियल कैपिटल हम मुंबई बोलते हैं.
आज 50% मार्केट शेयर स्टॉक मार्केट का जो कंपनी है वो बैंगलोर से काम कर रही है। बताओ। जीरोधा या ग्रो को देख लो, they have come from nowhere and they are now ruling this industry. One is bootstrap, one is PE bank, and others are also come. So, and they all are the young, energetic, and they are doing the multiple beautiful things because they have taken decision. They have taken decision. So, whatever people believe, they require someone who can support them. Today, whatever we are here, you are there, and whatever you are doing it, because that support we have got from our family and our मेन सपोर्ट सिस्टम, जिनको हम देखते हैं कि जिनके पास हम जाना चाहते हैं, जिनको हम जिस पे डिपेंडेंट है सपोर्ट सिस्टम पे, अगर वो सपोर्ट सिस्टम नहीं लेंगे तो मैं तू और मैं कुछ भी नहीं है। मतलब आज हम लकी है कि हमारा सपोर्ट सिस्टम ऐसा था जो वेलकमिंग था, जिन्होंने हमको इंकरेज किया आने के लिए, क्योंकि हर बंदा कैपेबल है, एवरीवन इज कैपेबल, एवरीवन, सबके पास में वो अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, सबके पास में उतना नॉलेज है, बट उस अपॉर्चुनिटी को इनकैश करने के लिए जो फैक्टर है वो फैक्टर आपका सराउंडिंग है, जो उतना इंकरेजिंग होना चाहिए। एंड दैट ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है तुषार जो बता रहे हैं कि जैसे इंडिया आज की डेट में थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम है फॉर द स्टार्टअप्स, स्पेशली दी स्टार्टअप्स हु आर कमिंग फ्रॉम द फिनटेक इंडस्ट्री। और अगर सही इकोसिस्टम नहीं मिलेगा किसी को भी, जहाँ पे रिस्क एलिमेंट इन्वॉल्व है, और तुषार आपने तो ये जर्नी देखी है जहाँ पे आपने एक समय आर्बिट्राज किया है कि एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन टेकिंग माइंडसेट लेके आपने वो एक्शन भी लिया है। तो ऑफ कोर्स एजुकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल अगर बन जाए कि कैसे एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े अपने स्टूडेंट्स की, कैसे यूथ उस पोटेंशियल को यूज करके ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में कंट्रीब्यूट कर सके, और सभी इस पे बहुत कुछ काम चल रहा है। मैंने देखा कि स्किल इंडिया के ऊपर या जो एंटरप्रेन्योरल स्किल डेवलपमेंट पे भी काम चल रहा है। आई थिंक बहुत कुछ करना बाकी है अभी तुषार। तो जस्ट आई एम सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू, बट पिछले 5-6 सालों में जो चेंजेस हुआ है और जो स्पीड पोस्ट कोविड और ड्यूरिंग कोविड पकड़ी है वो डिफरेंट, मतलब आने की, इफ यू गो टू स्मॉलर टाउन बहुत सारे इंक्यूबेटर है। मतलब इवन वी आर ऑल्सो रनिंग वन इंक्यूबेटर, वेनिस स्टेशन इंडिया फाउंडेशन, जो हमने बीआईटी जहाँ से हमने इंजीनियरिंग करी है वहां पर हमने सेटअप किया हुआ है। सो थिंग्स आर चेंजिंग, और हम मतलब हमारा डिसीजन लेने का, जो मेरे बाकी पार्टनर है, उसके पीछे जो मेजर पुश था वो जब हमने इंक्यूबेशन की एक्टिविटी करी बीआईटी में, और जहां पर हमारे क्लोज टू 30 आइडियाज आए, और यू आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ दैट, यू आर द वन ऑफ द मेंटर ओवर देयर। जब उन बच्चों में जो 20 साल के 21 साल के, और उनमें जो जुनून था, और हमें उन्होंने पुश किया। अगर मैं बोल सकता हूँ कि आज 2 साल हो चुका है, एग्जैक्टली 2 साल हो चुका है मुझे जॉब छोड़ के ये जर्नी में आए हुए। अक्टूबर 2021 में मैंने जॉब छोड़ी थी। सो वो जो इंक्यूबेशन का जो काम हमने 2021 मई में चालू किया था बीआईटी में, और उस जब उनसे मिला, जो उनके एनर्जी थी और जो उनका कॉन्फिडेंस था, हमें लगा कि बॉस हम खाली सोच ही रहे हैं, हम एक्सेल शीट और माइंड शीट में ही बैठे हुए हैं, हम उसे बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं, हम कंफर्ट जोन में हैं, और हम अपनी नाकामी और अपने डिसीजन लेने की नई कैपेसिटी को हम कुछ ना कुछ में डाल देते हैं। फैमिली है या ईएमआई है या जो भी है, So ठीक है, I'm not clutches saying both. कि We take हाँ। clutches. We decide to put blame on somebody else or the system or something, and we delay decision. What I like about you, Tushar, which you said, is that you taking right decision on the right time. When you said you are taking decisions, I think that's what entrepreneurs are made of, right? They make calls. They take call for action, isn't it? तो देखो, इंडिया में जितने ज्यादा एंटरप्रेन्योर है उतने तो वर्ल्ड में कहीं पर भी नहीं है। यू लेफ्ट आउट, यू सी बहुत सारी दुकानें छोटी है, तो कल्चर तो एंटरप्रेन्योर का है ही। वो Correct. क्या गया है कि जो एक सेगमेंट है वो हो चुका है, जैसे हमारे पेरेंट्स, मतलब मैं बाय बर्थ फार्मर हूँ, मतलब पैदा होते ही जो मुझे मिला हुआ है वो सरनेम बोपचे मिली हुई है, कुल मिला हुआ है, क्षत्रिय मतलब मेरी ये मिली है, साथ में मुझे फार्मर का टैग मिला हुआ है, क्योंकि दैट इज व्हाट। देन माय फादर ही वाज इंजीनियर, उन्होंने जॉब करी, तो मैं, मेरी सिस्टर डॉक्टर है, मैं इंजीनियर बन गया। बट अल्टीमेटली तो आपका जो रूट है वो तो आपका फार्मिंग है, जहां पर आप बिजनेस ही करते हो, आप उगाते हो। सो along with this thing, why I am bringing this aspect of farming and वो कि होता क्या है ना कि
आजकल हमारे जो थॉट प्रोसेस है और जहाँ पर हम टफ होते हैं कि आपने डिसीजन भी ले लिया, आपको लोगों ने सपोर्ट भी कर दिया, एंड देन यू आर मोर हंगर इन टर्म्स ऑफ द रिजल्ट, ठीक है, एंड देन देयर आर मेनी पीपल दोस आर टेकिंग डिसीजन, ऐसा नहीं कि जो डिसीजन लेते हो सक्सेसफुल ही होते हैं। डिसीजन लेने के बाद में हमारा ये है कि यार आप शुगर कैन होता है ना कि आप डालते हो और आपको आपने कैन डाला और आपको जूस मिल गया, तो पीपल का एक्सपेक्टेशन ऐसी हुई है। सो एंड फॉर मी बिकॉज आई स्टार्टेड टू थिंग्स बिफोर स्टार्टिंग आई विल नॉट टेक माई सेल्फ एज एंटरप्रेन्योर, इज लॉन्ग वे टू गो। आई ऑलवेज से कि मैं एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर बनाऊं, एंड इट इज अ लॉन्ग वे जर्नी बिकम एंटरप्रेन्योर। तो जब मैं एम्प्लॉयर बना तो मैंने साथ में दो चीज साथ में चालू करी। एक है मैंने इंक्यूबेशन सेंटर अपने दोस्तों के साथ में, एक है मैंने जो फार्मिंग थी उसको मैंने एक नेचुरल फार्मिंग के रूप में किया, जहाँ पर नो केमिकल नथिंग। 1200 मैंने मोहगनी के प्लांटेशन किए, एप्पल पेड़ लगाए, फिर वो नहीं चली, फिर उसके बाद में मैंने मैंगो प्लांटेशन चालू किए, और फिर अभी मैंने 200 नींबू के पेड़ लगाए हुए, बिकॉज दैट्स हेल्प मी कि बॉस आपने डाला हुआ है, एक बार आप लगाते हो तो आपका ड्रिप इरिगेशन खराब हो जाएगा, फिर आपको नहीं लगाना है, फिर पेड़ नहीं चलेंगे, फिर वो नहीं होगा। तो वो जो होता है ना, जो पेशेंस जो आया हुआ है, और जो आपको जो पेशेंस दे रहा है, जो आपको दे रहा है कि टाइम लगेगा और रिजल्ट मिलेगा, वो आपको खेती सिखा रही है। और हो सकता है कि बारिश हुई और चीजें खत्म हो गई, या आपके ओले पड़े और आपकी फसल खराब हो गई, वो सब जो एक्सपीरियंस है आपको वो फार्मिंग से आ रहा है, जो आपने देखा हुआ है, बरसों से दिखते आ रहा है अपने दादाजी को, कजिन लोगों को, या खुद एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो आपको पता है कि यार आपको बने रहना है मार्केट में, करेक्ट। चीजें मिली। सेकंड, आपको जो एनर्जी है, जो जुनून है, वो जो इंक्यूबेशन सेंटर जो सेटअप किया हुआ है वहां से आ रहा है। जो नए यंग पीपल है, दे आर टॉकिंग अबाउट दे विल चेंज वर्ल्ड, एंड इवन दे डोंट नो एनी स्मॉलर, दे डोंट नो एनीथिंग आई कैन से राइट नाउ, पर जो उनका थॉट प्रोसेस है ना कि बहुत मैं तो आग लगा दूंगा, वो जो हम मिस कर फायर मिस कर रहे हैं, वहां से फायर मिस कर रहे हैं, वहां से मिल रहा है बहुत, बने रहो, आज फसल लगाओगे कल आएगी। तो दिस इज ऑट योर एंटरप्रेन्योर जर्नी काइंड ऑफ थिंग है कि जहां पर आप अपना और इंटेंट अगर सही है ना, तो चीजें यू विल गेट। ओनली थिंग इज दैट कि जब आपने डिसाइड कर लिया फिर सोचना नहीं, करना है। तो वी इन्वेस्ट लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ एनर्जी ऑन थिंकिंग, very half of the energy on the act. So now only the act is important, not the thinking is much more important. So I think very nicely put. अगर मैं इसको समराइज करूं in terms of few words, हाँ, तो पहला है कि इस जर्नी में ऑफ कोर्स यू नीड टू हैव ग्रेट अमाउंट ऑफ पेशेंस, धैर्यता चाहिए। जो जैसा तुषार ने बताया कि धैर्य का गेम है, और कंसिस्टेंसी चाहिए। धैर्यता साथ में निरंतर आपको प्रयत्न करना होगा ताकि आप अपने वो अचीव कर सकें गोल को। और तीसरी बात कि जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, अप्स एंड डाउन्स आएंगे। भाई आपने प्लांटिंग कर दिया, बट अगर सडन रेन्स हो गए और वो उसको इम्पैक्ट करते हैं तो प्लस माइनस हो सकता है। तो अप्स एंड डाउन्स के लिए भी आपको, एंड फोर्थ थिंग विच आई तुषार जो मैं समझ पा रहा हूँ वो है द मोमेंटो और द एनर्जी which you need to keep high so that you can achieve. So I think these are the four important takeaways जो I think इस conversation से मैं तुषार से सीख पा रहा हूँ। तुषार अपना ना एक है। हाँ तुषार, हम बचपन में मारियो खेले हैं ना। हाँ बस बस बिल्कुल लाइफ बिल्कुल। लाइफ इज ऑल अबाउट मारियो। लाइफ मिलेगी, पहले हार जाएगी, पहले एक लाइफ जाएगी, पता लगेगा कि इस बार यहाँ क्लिक करा तो इतना हाइट बढ़ेगा, यहाँ करेक्ट। पॉइंट मिलेंगे। तो जब हाँ तक अगर हम गेम खेलेंगे नहीं तो दूसरे स्टेज थर्ड स्टेज पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो आपको निकलना इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि बचपन में तो हम लोग हम भी वो खेलते थे। जोन में जाके हाँ, रेगुलर। तो बस तो वही। तुषार अपना एक बहुत अच्छा सेक्शन है अपने पास, एक बुक है गुरुदेव श्री रविशंकर जी की। दिस बुक इज ऑन लीडरशिप। इट्स एन अमेजिंग बुक, लीडर्स के लिए है। तो तुषार मैं आपको आप अपना कोई एक छोटा सा हम 1 से 75 के बीच में कोई भी नंबर आप बताइए। हम इसमें से एक ब्यूटीफुल कोट, आपका फेवरेट नंबर जो होगा उससे निकालो, एंड देन विल डिस्कस एंड अंडरस्टैंड योर पर्सपेक्टिव। कोई एक नंबर 1 से 75 के बीच। 1919। 19, करेक्ट 19 ना? 19 19, मेरी हाँ। तो पहली 19 में 19 में हमारे लिए एक मैसेज है आज तुषार, मैं पढ़ता हूँ। मोस्ट ऑफ अस आर नॉट गुड लिसनर्स। When you are listening to somebody,
the speaker's very first sentence triggers a conversation within you. A good listener is always a good leader. मैं फिर से रिपीट करता हूं, most of us are not good listeners. When you are listening to somebody, the speaker's very first sentence trigger a conversation within you. A good listener is always a good leader. So your thoughts on that? फिर मैं अपने कुछ इसमें inputs share करूंगा. So one of my weakness is that I am not a good listener. So I am trying to learning that part. How means now I need to give more time in terms of hearing out other people and then come jumping on the thought kind of thing. And once you grow and make vision, big mission and vision on you are on that part. So you have to allow other to come up with their thought, and then and that's create a good team, good objective to fulfill. So मैं यही बोलूँगा कि मैं इस important तो मेरा तो मतलब because I am to experiencing this thing, because when you talk in my circle कि तुषार बोलने का मौका कम देता है, अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी तो अगर आधा घंटा दिया मल बंदा है, वो ऐसा बोल रहा है कि वो सुनने नहीं देता है, बट वो सबसे ज्यादा वही सुनता है. और ये जो कोट हम जनरली करते हैं इस कॉन्वर्सेशन में, इसलिए करते हैं कि हम सब क्या सीख सकते हैं, क्योंकि हम सब सीखने की जर्नी में और सीखते हैं तो इम्प्लीमेंट करेंगे जीवन में. तो बेसिकली मेरा जो टेक अवे ये है कि और नॉट कि किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं है, किसी के लिए भी. जनरली हम जब कोई बात करता है तो हमारे मन में ऑलरेडी कुछ कुछ ना कुछ कॉन्वर्सेशन चलता है उसके बारे में. अगर हम कुछ सोचते रहेंगे और सामने वाला बोल रहा है तो हम उसकी बात को पूरा समझ नहीं पाएंगे, उसका पर्सपेक्टिव मिस कर जाएंगे, उसकी बात की गहराई मिस कर जाएंगे. तो व्हाट गुरुदेव in this beautiful book on leadership, he says that if you want to be a good leader, you should listen what the other person is saying in totality without any judgment. And once you're able to understand with complete totality without any judgment, in that case you can either guide, learn, suggest, improve from that conversation. But during the conversation अगर दिमाग में खिचड़ी चल रही है, कुछ conversation चल रहा है, तो आप उसका context ही मिस कर जाएंगे. So I think this is not for us but for anybody who wants to be a good leader should keep harping the fact that a good leader is also a good listener, and with good listening he can make good decisions. Isn't it, Tushar? Yes. Yeah. So Tushar, और कुछ कोई नया बताइए. What is the any other new projects you have taken up which is helping Bharat grow, and how you are contributing to the mission of $5 trillion economy from your ventures and from initiatives, Tushar? So last 4-5 years से मतलब everybody is talking about 5 trillion economy. अब तो ऐसा हो चुका है कि इंडिया में 700 से ऊपर डिस्ट्रिक्ट है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाओ सबको पता है कि बस हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाले हैं. तो हमने सोचा है दुनिया वाले सब उसी मिशन के लिए निकल पड़े हैं और उस मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं. तो पैसा तो भरमार आएगा. जब पैसा भरमार आएगा तो हमने तो ये देखा कि जब पहला जितना पैसा अभी आया है लोग उसको मैनेज ही नहीं कर पा रहे. फाइनेंशियल लिटरेसी तो है ही नहीं. लोगों को लोन के ऊपर जाना पड़ रहा है, लोग उसको अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं. और इंडिया का मार्केट तो बहुत अच्छे से रेगुलेटेड है. जितना सेबी ने, आईआरडीए ने काम किया हुआ है, एमपी ने काम किया हुआ है, आरबीआई ने किया हुआ है, उतना तो बाहर के इकोसिस्टम में वो इकोसिस्टम ही नहीं बिल्डअप है. तो हमने उसी वे को मतलब जो गवर्नमेंट ने और जो चीज़ें चल रही है, जो दिख रहा है और जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है और जो हमारी वीकनेस है अगेन वही हमारी स्ट्रेंथ है, पॉपुलेशन. और हमारी एजुकेटेड पॉपुलेशन है जिसका पर कैपिटल इनकम अब $2200 से $5000 तक जाने वाला है. तो पैसा तो आने वाला है. मतलब चलो बॉस अपन भी जाली लेके खड़े हो जाते हैं रास्ते में. तो दो स्टार्टअप को साथों साथ चालू किया. एक है इन्वेस्ट फॉर एडू, जो हम एक इकोसिस्टम बिल्डअप कर रहे हैं जहाँ पर चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग के लिए हम क्योंकि इंडिया की 40% पॉपुलेशन 20 साल से कम है, विच कम्स टू मोर देन 50 करोड़ पीपल, जो कि पूरे यूएस की पॉपुलेशन 33 करोड़ है, यूरोप की 73 करोड़ है. तो एक ह्यूज पॉपुलेशन है जहाँ पर एक सोचा कि क्या निकाले. तो हम एक ऐसा इकोसिस्टम बिल्डअप कर रहे हैं जो जहाँ पर एजुकेशन के लिए, बच्चे के एजुकेशन के लिए पेरेंट्स को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए,
जो भी टूल चाहिए, सर्विस चाहिए, तो हम क्रिएट ए चाइल्ड एजुकेशन प्लान, ये टूल लॉन्च कर रहे हैं। और जो आपने इन्वेस्ट किया हुआ है उसको इवेल्युएट करने के लिए हमने टूल बनाया हुआ है। सो और वो कस्टमाइज है, मतलब आने की जो एज डालोगे उसके हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट आएगी, फ्यू क्वेश्चंस है। और एक पूरा इकोसिस्टम बिल्डअप किया है जहाँ पर आपका करियर काउंसलर है, एडमिशन काउंसलर है, एजुकेशन लोन है, एफडीज है, म्यूचुअल फंड है, और आपका स्टडी अब्रॉड के लिए है। तो दिस इज हाउ वी आर बिल्डिंग, बिकॉज अभी पेरेंट्स को कोई एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर उनको जाके पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और पहले सवाल रहा नहीं है, हम भिलाई में थे, हर हर बंदा इंजीनियर बनना चाहता था, इसलिए हम भी इंजीनियर बने। अभी तक मैं 2005 में जब मैंने एमबीए किया तो उस समय एक प्रोजेक्ट है, इंडियन स्टॉक मार्केट इज रूल्ड बाय सेंटिमेंट और फंडामेंटल। तो मानव अधिकारी सर थे जो हमारे डीन हुआ करते थे, जो एफएमएस में भी डीन थे, वो इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे, और उन्होंने बोला कि दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज जाओ और एक प्रोजेक्ट करो। सो हमने ये कंक्लूड किया कि शर्मा जी बोलते हैं और वर्मा जी इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, स्टिल अभी तक शर्मा जी बोलते हैं और वर्मा जी इन्वेस्ट करते हैं। बट नाउ थिंग्स आर, बिकॉज बच्चे लोग डिसीजन ले रहे हैं, देयर इज इंफॉर्मेशन आर इजीली अवेलेबल। सो वी वांट कि डिसीजन शुड बी कलेक्टिव, सो विथ सर्टेन साइकोमेट्री टेस्ट, करियर काउंसलर, गोल सेटिंग के साथ में, ताकि उनको अपनी रिटायरमेंट डिले नहीं करना पड़े, बच्चे का एजुकेशन प्रॉपरली हो जाए। So this is one purpose where people are going to make money, they want decisions. So how we can bring three things together: the expertise of finance and then expertise of technology, जो हमारा in-house है, जो हमारी core founding team की expertise है, and the education is the core thing. So when I started, I tell ना कि education, finance और agriculture, three Yes. things are where we want to build up. So it is live enough. We are getting good traction, and we are very happy that we are building something which is going to change. तो हमारे को फाउंडर है मनोज, जो हम कई साल से साथ में हैं, तो वो बोलते हैं यार इंडिया 20 सिटी में खत्म हो जाता है, भारत 20 सिटी के बाद चालू होता है, लेट्स बिल्ड बिल्ड थिंग्स फॉर भारत। तो हमारी जो भी Absolutely. प्रपोजल है भारत के लिए है। एंड Absolutely. कोर क्या है, थॉट ये है कि वी आर मोर ऑन टू द सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रोथ के लिए। तो हम कार्बन न्यूट्रल होना चाहते हैं, इसलिए हमने मोहगनी के प्लांटेशन भी किया हुआ है, सो दैट वॉट एवर द कार्बन वी आर प्रोड्यूसिंग, वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस। तो वी वांट टू प्लेस साइमल्टेनियसली, वी स्टार्टेड विथ एनजीओ, वी स्टार्टेड विथ फार्मिंग। सो एवरीथिंग वी आर डूइंग इट टुगेदर, जो लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड जो स्टार्टअप है कि जो इन्वेस्ट वैल्यू है, जो हम डिस्ट्रीब्यूटर के लिए प्लेटफॉर्म बनाया है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों ने छोटे शहरों में अपना सेटअप नहीं किया हुआ है। और आप टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी आपको हेल्प करेगा, पर आपको अगर वेल्थ मैनेज करना है तो यू गो टू योर फाइनेंशियल एडवाइजर। नाउ दैट फाइनेंशियल एडवाइजर आल्सो रिक्वायर दैट हेल्प, कि बॉस मैं जो प्रोडक्ट दे रहा हूँ वो प्रोडक्ट सही है कि नहीं है, प्रोडक्ट मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वहाँ भी हम अगेन प्लेटफॉर्म बिल्डअप कर रहे हैं, और ऑलरेडी इस प्रॉफिटेबल कंपनी, लास्ट 2 इयर्स में हमने जो भी काम किया वो प्रॉफिटेबल है, अच्छे क्लाइंटेल है। एंड देन वी वांट टू टेक इट टू द स्मॉलर सिटीज, जहाँ पर जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है जो लोगों की वेल्थ मैनेज करते हैं, तो उनके लिए एक सॉल्यूशन हम दे सकें, सो दैट वो अपने क्लाइंट को अच्छे से सर्विस दे सकें। सो क्योंकि बड़ी कंपनी जो अच्छे सॉल्यूशन है वो छोटे शहर में जाना नहीं चाहते, क्योंकि कॉस्टिंग होती है, और जो वहाँ के लोग हैं उनको पता नहीं होता है, तो एट द एंड कस्टमर मिस आउट करता है। एंड इंडिया अभी तक प्रोडक्ट सेलिंग मार्केट था, नाउ ड्यू टू द यूपीआई and digital way, now it is the right time where we can change from product selling to service orientation, solution selling. So that is what we are trying. Let's see how far we go, how the way we do together. So अपनों के साथ अपनों के लिए कुछ बनाने की एक मुहिम है, देखते कहाँ तक हम इस चीज को आगे ले जा पाते हैं। अमेजिंग। ये सुन के इतना इतना प्रोत्साहन और इतना अच्छा लग रहा है कि किस तरीके से कमिंग फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड, कमिंग फ्रॉम स्मॉल टाउन्स इन भारत, और किस तरीके से इस जर्नी को आगे लाना, अपने एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करना, और जो भी स्पेशली जो भी यंग यूथ जो हमारे साथ देख रहे हैं, जो भी जुड़े हुए हैं, ये उनको ये समझना चाहिए कि कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में जो इसको देख रहे हैं कि किस तरीके से फ्रॉम वेयर यू स्टार्ट एंड वेयर यू रीच, दिस जर्नी रिक्वायर्स पेशेंस, रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी, जैसे तुषार ने बताया, और डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज, taking those calls which can help you grow, prosper, and support of the entire the ecosystem. घर से स्टार्ट होता है, फैमिली से स्टार्ट होता है, बट दोस्त हैं, और उसके बाद जो इकोसिस्टम है, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है जो सपोर्ट करती हैं,
जो हमारे नेटवर्किंग के सपोर्ट सिस्टम है वो हमको सपोर्ट करता है। तो आई थिंक तो वेरी एक इजी कॉन्वर्सेशन तुषार, वेरी इजी। हाँ तुषार। एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि मेरी पहली जॉब जो चालू हुई थी स्टॉक मार्केट में चालू हुई थी। हाँ ठीक है, और अभी भी पूरा बैकग्राउंड वही है। तो हमें एक ही चीज सिखाया गया था कि अगर सौदा लॉस का है ना उसको काट देना चाहिए। हाँ हाँ, स्टॉप, मतलब देयर इज स्टॉप लॉस थिंग, नो देयर, इफ स्टॉप द स्टॉप लॉस है, मतलब या जो भी गलती की भी सौदा हुआ है काट देना चाहिए। करेक्ट करेक्ट, ताकि और और काटोगे काटोगे तो कैपिटल बचेगी, तो कुछ और नया नया पोजीशन बना करके प्रॉफिट ले पाओगे। तो अगर माइंड में अगर आइडियाज है, चाहे जॉब के अंदर, ऐसा नहीं कि आपको जॉब छोड़ के ही कुछ अच्छा करना है, और ऑर्गेनाइजेशन आल्सो प्रोवाइड सो मेनी अपॉर्चुनिटीज टुडे। आई एम लकी कि मैं इंडिया पोस्ट जो भी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने काम किया हुआ है, लास्ट 4 ऑर्गेनाइजेशन में मैंने काम किया हुआ है, सभी ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी दिया हुआ है टू लीड प्रोडक्ट, टू डिजाइन प्रोडक्ट, टू सेल प्रोडक्ट। दैट्स द रीजन। पर कहीं भी आपको लगता है कि चीजें गलती हो गई है, टेक डिसीजन, मूव अहेड, सो दैट आपका एक स्कोप अच्छा बढ़ते जाएगा। नो परफेक्ट। आई थिंक बहुत फ्रूटफुल एंगेजिंग कॉन्वर्सेशन तुषार, बहुत मजा आया। वी विश यू बेस्ट, ऑल द ब्यूटीफुल एक्शन इनिशिएटिव्स यू हैव टेकन, और जर्नी में और आगे आप करें, और ऐसे ही इंडिया और यूथ को इंस्पायर करें, और लॉट ऑफ लर्निंग फ्रॉम टुडेस कॉन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच तुषार फॉर गिविंग अस टाइम एंड मीटिंग ओल्ड Thank फ्रेंड्स you आफ्टर very लॉन्ग much. लॉन्ग टाइम। Good luck for your journey, what we have started, and it is really amazing that you are connecting people.